we will study. Uh, we'll carry on our discussion from the Maxwell equations. We have derived that C E0 upon B0 is equal to the velocity of light. And the second expression that we have derived is C is equal to 1 upon under root of this is mu 0 and epsilon 0. ये हमने कुछ डिस्कशन अभी तक किया था और अब हम आगे इसको कैरी करते हैं कि यदि ऐसा पॉसिबल हो, if this is for the free space, this expression, this is the velocity of light, I mean velocity of light in free space. Okay, so what if, question is, but if there is change in medium, so see what will happen to the velocity of light. It's a very interesting thing. यदि मान लिया जाए कि मीडियम चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्या फ़र्क पड़ता है. सी जरा आप ये देखिए, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है और ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन 0 के ऊपर, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द म्यू 0. सो this depends upon the permittivity. This depends upon the permittivity, and this depends upon permeability of free space. Okay, so when there is a change in medium, during change in medium, then epsilon 0 will change to the permittivity of the medium, and the mu 0 will change to the permeability of the medium. What will happen then? The C will then shift to C will then change to V, and this expression will now become 1 by square root of mu and epsilon. So when we shift our discussions to optics, हमारा जो next chapter आने वाला है उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि how the velocity of light change from how velocity of light change with medium, change in medium के बदलने के साथ velocity क्या हो जाती है. So in free space the velocity of light is 1 upon square root mu 0 epsilon 0. But if there is a change in medium, then this C will change to V, which is less than C, and this is under root mu epsilon. And then a refractive index of the medium is N is equal to C by B. Okay, so you can write it like this. So these are just 2-3 very important relations, and this is another relation. Okay, and this is it's a different relation. So we'll think about it with the passage of time. All right. Okay. So now we will go to the next part of the discussion in the next page. अब हम पढ़ते हैं कि the energy density of electromagnetic waves. So next part of this video is energy density, very interesting, energy density of electromagnetic waves. आपको याद कुछ नहीं करना, आपको सब चीज़ें समझनी है कि चीज़ें कैसे होती चली जाती है. मैथमेटिकल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करना है. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सी आपने क्या पढ़ा है अभी तक? जो हमें पढ़ा है हम उसके साथ चलते हैं. हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो होती है यू, ई से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं,
और उसको हम लिख सकते हैं 1/2 ε0 ई स्क्वायर। ये आप जानते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। और द मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो होगी 1/2 μ0, दिस इज परमिएबिलिटी, एंड दिस इज v स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम कुछ रियलिस्टिक बात करते हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम चर्चा कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या चीज़ घटती है उसके बारे में ही बात करने के बाद हम अगला मैथमेटिक्स बनाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप जानते हैं कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको बड़े ध्यान से हम बनाने की कोशिश करते हैं। You know, no, it will not be possible like this to draw it. Electric field vector जो है it varies like this nearly, जो okay, and this is the electric field vary like this. This is along x-axis. इसको आप पढ़ चुके हैं पहले, जिसको आपने मैथमेटिक्स में लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड along x direction is equal to E0 sin of kz minus omega t. So wave is moving along z axis, right? But about the magnetic field vector, उसको हम यहाँ बनाते हैं कि जो it will vary like this, okay? वो जो है वो बाय एक्सिस में वेरी करेगा, and the variation of this is like this. Okay, so magnetic field varies like this, and there is no point there is no variation in the electric and magnetic field. So in electromagnetic waves, this is the variation of the magnetic field, this is the variation of the electric field. Now see here, जब ये दोनों इकट्ठी चलती हैं तो कुछ किस तरीके की लगती है वो हम एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं अपनी ओर से। ये देखिए, ये हो गया आपका this is the representation, and okay, so now इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। This is the variation of electric field, and this is the variation of magnetic field. ओके, सो अब आप यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the variation of electric field, and this is the variation of magnetic field. Now this is the variation of magnetic field. So magnetic field varies like this. Okay, so this is variation of electric field in the downward direction. This is the variation of electric field in the downward. Oh, this is the variation of electric field in the downward direction. Okay, and the magnetic field is in this direction. So this is how electromagnetic waves varies, and this is the direction of propagation of the electromagnetic waves. See carefully. So this is x-axis and this is y-axis. All right.
दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपिगेट ना। सी आपने क्या देखा कि आप इस पॉइंट पर कहीं भी आप देख लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड this is y axis and this is z axis. Okay, so in this diagram, but you're observing that the electric field is varying at every point. So here in this diagram you can see that magnetic field along y axis is, आपको दिखेगा नहीं तो ये भी नहीं दिखेगा, ये कलर आपको दिख जाएगा, this is equal to b0 sin of this is kz minus omega t. Clear? So you can see this is B by magnetic field along bidirection is varies like this. So this is bearing at every point. इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टैटिक वैल्यू ऑफ ये आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसके जगह टोटल एनर्जी, जैसे यहाँ आपके पास टोटल एनर्जी हो जाएगी EU टोटल इज इक्वल टू EUE इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू 1/2 epsilon 0 E square plus 1/2 mu 0 and this is V square. So this is equation number 3. Clear हो गया? But we have seen over here in this diagram, हमने ये देखा कि electric and magnetic field are varying at every point of time. So what we will use, we will find that average value of this total energy, and then we will shift this E to root mean square value. Here we shift E to E root mean square and B to B root mean square value. Okay, so यहाँ देखिए हम इसको कैसे लिख देंगे, this is 1/2 epsilon 0 E root mean square value of electric field plus this is 1/2 mu 0 and B root mean square value of magnetic field. But we know that हम ये जानते हैं कि जो E root mean square value of electric field is equal to maximum value of electric field divided by square root of 2, and the root mean square value of magnetic field is equal to the maximum value of magnetic field over square root of 2. So आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, आप ये पाएंगे कि एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 दिस इज एप्सिलॉन 0, ये पुट कर दीजिए आप, ये आ जाएगा E0 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस दिस इज इक्वल टू 1/2 म्यू 0, और यहाँ आप इसका स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा B0 स्क्वायर अपॉन 2. So U average is equal to, this is 1/4, this is epsilon 0 E0 square plus 1/4 mu 0 and this is B0 square. So this is equation number 4, right? So now just try to insert this new relation between the two. We know that C is equal to, this is E0 upon B0. So पहले आप ऐसा करिए कि आप E0 को एलिमिनेट कर दीजिए. यदि आपको E0 को एलिमिनेट करना है तो आप ऐसा लिख देंगे E0 is equal to C time B0. Okay, this is another equation which is equation number 5. So U average is equal to 1/4 and epsilon 0. So this is आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ E0 is equal to CV0, then E square is equal to C square V square. This is C square B0 square plus 1/4 mu 0, this is B0 square. Okay, so here use by using you cannot shift it up, so now we have to go to the next page. We have to go to the next page now. But we have seen, we have now see we have U average is equal to, अब लास्ट पेज में हम देखते हैं, पहले हमारे पास है 1/4, this is 1/4, this is 1/4
and then epsilon 0 c square, this is I think b0 square, c square b0 square plus 1 by 4 mu 0 and b0 square. ओके, सो यूजिंग, आप यहाँ यूज़ कर दीजिए यूजिंग c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0, आपके पास आ जाएगा u एवरेज इज इक्वल टू 1 by 4 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 by 4 म्यू 0 एप्सिलॉन 0 b0 square plus this is 1 by 4 mu 0 into b0 square. So epsilon 0 is cancelled with this. So जो average है वो आ जाएगा आपके पास 1 by 4, this is b0 upon mu 0 plus 1 by 4 b0 square upon mu 0. So this is equal to 1 by 2 mu 0 into b0 square. So this is a good expression for us to think about. Okay. So now this is equation number 6. This is equation number 6 for us. So now if we will try to eliminate the second part of this, यदि हम से इसका second part eliminate करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 4, सो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी हैव, हमारे पास था u एवरेज वॉज इक्वल टू 1 by 2 एप्सिलॉन 0 e 0 square plus 1 by 2 mu 0, and this was b0 square. I think this was like this, equation number 4. Okay, so now using, अब आप b0 को एलिमिनेट कर देंगे, b0 is equal to e0 upon c, c is equal to e0 upon b0. So now see here, u average is equal to 1 by 2 epsilon 0 e0 square plus 1 upon 2 mu 0. इस रीजन में क्या है, 4 है, दिस इक्वेशन नंबर 4 में ये 4 है, 1 by 4 है, दिस इज 1 by 4, दिस इज ऑल्सो 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4. सो दिस इज b0 की जगह आप ले सकते हो, दिस इज e0 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो आप c स्क्वायर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन mu 0 epsilon 0. So you will have then u average is equal to 1 by 4 epsilon 0 e0 square plus 1 upon 4 mu 0 into mu 0 epsilon 0, this is e0 square. So mu 0 से mu 0 square cancel हो जाएगा, you will left with 1 upon 4 epsilon 0 e0 square plus 1 upon 4 epsilon 0 e0 square. So this is equal to 1 by 2 epsilon 0 e0 square. So this is once again very interesting expression you have found at the end. This expression from equation number 7, from equation number 7, from equation number 6 and 7, from equation 6 and equation number 7 we have, हमने क्या देखा, u e is equal to ub and both are equal to u average. So this is very interesting expression for us. Our next topic of discussion is the intensity of our next topic is to discuss about the intensity of electromagnetic waves. So next part of the video is
intensity of electromagnetic waves. Well, now very interestingly, we'll discuss about intensity of electromagnetic waves. Intensity of electromagnetic waves. ओके जैसे अब लिक्विड के केस में डेंसिटी को पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको जैसे लाइट के केस में, वेव्स के केस में आपको इंटेंसिटी को समझने का कोशिश करना है. ओके सो जो इंटेंसिटी का डेफिनेशन होगा, हम ऐसा लिख देते हैं. इंटेंसिटी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी, दिस इज द रेशियो ऑफ एनर्जी पड़ रही है एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया पर किसी पर्टिकुलर टाइम में. आप एक यूनिट टाइम चूज़ कर लीजिए, एक पर्टिकुलर एरिया, एक यूनिट एरिया सेलेक्ट कर लीजिए. उस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी कितनी पड़ रही है, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो वेल आई विल ट्राई टू ड्रा द डायग्राम फर्स्ट. कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक ऐसे कोई रिंग है. This is like this. Okay. So this is C is the velocity of light. So किसी डेल्टा टी टाइम में जो लाइट है वो इतने दूर चली जाएगी, और ये जो उसका हो गया वो दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ब्लॉक, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. आई वोंट लाइक टू से मच अबाउट इट. इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. हमें यदि एनर्जी निकालनी है तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एनर्जी डेंसिटी का होता है. हमें इस एक्सप्रेशन, हमें इंटेंसिटी को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इंटेंसिटी को समझने के लिए हमें एनर्जी का पता होना चाहिए. हमारे पास बाकी जो पार्ट है वो हमें पता है. अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले एनर्जी निकालें. एनर्जी कंटेन्ड इन द सिलेंडर, द एनर्जी contained in the cylinder is so एनर्जी क्या होगी? एनर्जी जो होगी, एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी बाई वॉल्यूम होता है. सो एनर्जी इज एनर्जी डेंसिटी. हमारे पास हो जाएगा एवरेज. वो आपके पास है एवरेज एनर्जी डेंसिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एनर्जी रह जाएगी. ओके सो आप एनर्जी, एवरेज एनर्जी तो आपको पता ही है. दिस इज अभी हमने ड्राइव किया है 1/2 एप्सिलॉन 0. दिस इज E0². और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है एरिया को जब आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आपके पास एरिया है A और लेंथ है आपके पास C टाइम डेल्टा T, राइट. सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, अब इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को आप यहाँ पुट कर दीजिए. ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, now from equation 1 and equation 2, from equation 1 and 2 we have, देखिए इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, एनर्जी आपके पास आई 1/2 एप्सिलॉन 0 E0² क्रॉस A क्रॉस C टाइम डेल्टा T डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू डेल्टा T. सो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, A से A कैंसिल हो जाएगा. यू हैव एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E0² टाइम C. इसको आप ऐसा लिखिए जरा, ये आ जाएगा C टाइम एप्सिलॉन 0 E0/√2 इंटू E0/√2. आप ये जानते हैं कि ये जो E0/√2 वाला जो पार्ट है, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके सो दिस इज intensity of electromagnetic waves could be written as C epsilon 0
E subscript root mean square value का square. This is the way to write this. Okay, so this is all about it. अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो मोमेंटम एंड द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो नाउ दिस इज द, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट पेज. मोमेंटम, momentum and pressure of electromagnetic waves. So this is once again very interesting. Momentum and pressure of electromagnetic waves. So we'll discuss now momentum and pressure of electromagnetic waves. So you will find it so easy. So देखिए प्रेशर जो है ना, आपने पढ़ा है, आप +1 में लेके चलते हैं आपको. आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो होती है 1/2 mv². यही होती है. इसको मैं ऐसे लिखूं जरा, 1/2, ये तो कांस्टेंट है, मैं इसको ऐसे लिख दूं mv/b. दिस इज मोमेंटम एंड दिस इज वेलोसिटी. दिस मीन्स एनर्जी जो होती है वो मोमेंटम को वेलोसिटी से गुणा करें तो आ जाती है, राइट. व्हाट डज दिस मीन्स, जो मोमेंटम होता है वो होता है एनर्जी अपॉन द वेलोसिटी. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो एक आप इक्वेशन लिख लीजिए इसको, राइट. ये आपको समझ आ गया. अब आपके साथ एक हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उस पिक्चर से आपको कुछ एक क्लैरिटी होगी. ये देखिए, मैं एक डायग्राम टेढ़ा नहीं बनेगा. मैं एक शीट लेता हूँ और इस शीट के ऊपर हम अपनी जो रेडिएशंस हैं उनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे फेंकते हैं. सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द वेव. यदि सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये एब्जॉर्ब हो जाती है, यदि एब्जॉर्ब हो जाती है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 0. और एक ऐसी संभावना है, यदि आपके पास ऐसे शीट है, इफ योर शीट इज लाइक दिस, और यदि आप इसके ऊपर वेव्स पड़ती हैं और वेव पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती है वापस, then what will happen? The change in momentum is equal to 2p. So take care of this. This is for the absorption and this is for the reflection. So if it reflect back, so then change in momentum is equal to 2p, and here change in momentum is only p. Okay, here delta p is equal to p, and here delta p is equal to 2p. Okay, so this is the first case. If the electromagnetic waves falls on the surface and is completely absorbed by this surface, okay, then no wave is reflected back from the surface. This means that final momentum of the wave is equal to 0, right? So change in momentum is equal to only p. Change in momentum is only p. So I can write according to Newton's second law of motion that f is equal to a rate of change of momentum. कितनी तेजी से momentum change होता है. Okay, so अब हमने पढ़ना है कि the force exerted per unit area, that is radiation pressure, is what? The pressure is the force upon area. Okay, so force is 1/a into कितनी तेजी से मोमेंटम चेंज हो रहा है. ओके, हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग. सो मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू, इसकी जगह आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जरा ध्यान से देखिए, आप इसकी जगह लिख सकते हैं u अपॉन c टाइम डेल्टा t, राइट. जरा ध्यान लगाइए, p/t यहाँ कर दे तो u अपॉन c डेल्टा t हो जाएगा. यू कैन डू इट लाइक दैट. So now you have dp upon dt, या मैं ऐसे रेडिएशन प्रेशर सीधा लिख दूं, मैं यहाँ लिख दूं रेडिएशन प्रेशर p इज इक्वल टू c को आप a से शिफ्ट कर दीजिए, इसका हम चर्चा भी कर देते हैं आपके पास, 1/c u अपॉन एरिया टाइम डेल्टा t. So this is equal to
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस पार्ट इज इक्वल टू आई। आप यहाँ चलिए, यहाँ चलिए, तो नो, आप ऐसा करिए, इंटेंसिटी वाला हमने किया था आपके साथ। यस, यहाँ देखिए ज़रा आप, इंटेंसिटी को आपने किया था एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, तो इसको हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी अपॉन, दिस इज द इंटेंसिटी इज एनर्जी अपॉन एरिया into time. So this is the energy upon area into time. So you can write that radiation pressure is equal to I upon C. So this is what we have to learn from this video, that you can write this the momentum. This is the relation between the radiation pressure, intensity of electromagnetic waves and the velocity of light. So one interesting information I would like to share with you, कि जब जो सनलाइट है आपके हाथ पर पड़ती है, आप धूप में खड़े होते हैं, आपके शरीर पर जब सनलाइट पड़ती है तो एनर्जी इज़ बीइंग अब्जॉर्ब फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आपका जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी फील करता है। गर्मी के दिनों में जब आप बाहर खड़े होते हैं तो आपको गर्मी का आभास होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, मोमेंटम ट्रांसफ़र करती हैं। और कौन मोमेंटम ट्रांसफ़र करती हैं, देखिए ज़रा, मोमेंटम का जो फार्मूला है P इज़ इक्वल टू U/C। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर द मोमेंटम टू योर बॉडी। पर आपको इस मोमेंटम से धक्का क्यों नहीं लगता? आपको जैसे मान लो आपको एक पत्थर मारा जाए, या आपको कोई डस्टर आपके ऊपर फेंका जाए, मोबाइल से आप टकरा जाएं, तो आपको आभास होता है कि आपको चोट लगी है। पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी बॉडी से टकराती हैं तो आपको आभास क्यों नहीं होता? आपका शरीर गर्म हो जाता है, पर आपको आइडिया नहीं होता कि कोई चीज़ आपके साथ टकरा रही है। तो ज़रा इमेजिन करिए कि जो वो वेव एनर्जी लेके आ रही होती है, उसका जो वो, और डिवाइडेड बाय, देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो जो इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो मोमेंटम होता है वो वेरी स्मॉल होता है। ये जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, एंड दिस इज़ एज स्मॉल, सो दिस इज़ अनऑब्जर्वेबल, इसको आप महसूस नहीं कर पाते। So this is what I would like to discuss with you। और इससे पीछे भी मैं आपके साथ एक बात और करना चाहता हूँ। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ, ये हमारे पास देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, इसका भी हम कुछ पार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया कि दिस इज़ द वे दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल, this is the way that electric field travel, this is the way by which the magnetic field travel, and this is the way that electromagnetic wave propagate, electromagnetic wave propagation, ये ऐसे propagate करती है। आप ऐसा करिए कि यदि मान लो आप इसके साथ एक शीट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रख सकते हैं, XY प्लेन में आप एक शीट रखते हैं, तो क्या होगा, यदि मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज है, if there is some charge on this sheet, what will happen then charge will set itself into the motion। जो चार्ज है, ये जो प्लेन है, इसमें the charge, I mean this plane, the electric charge will set and sustain its motion। तो जो चार्ज क्या करेगा, वो अप एंड डाउन, वो मोशन में आ जाएगा और अपने मोशन को बरकरार रखेगा। दिस मोशन ऑफ चार्ज in the plane sheet will represent that these electromagnetic waves carry energy and momentum with them. Okay, so this is all about this video. If you do have some question and confusion, then you can write it in the comment box. Thank you so much.